Hello everybody, this is the third video of the Cold War era and we discuss about the emergence of the power blocks. So the two superpowers, अब तक हमने ये पढ़ा कि कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर्स इमर्ज हो गई थी. इन दो सुपर पावर्स ने बेसिकली स्टार्ट क्या किया? These two superpowers actually divided the whole world into two alliance system. One is the Western Alliance and one is the Eastern Alliance system. अब क्वेश्चन ये इमर्ज होता है कि ऐसा क्यों किया गया? Why? The only reason is that they want to expand the area of influence. अपना influence क्रिएट करने के लिए, उनके ऊपर एक दिमाग में डालने के लिए कि उनको कैसा बनना है. उनको बनना है या तो अमेरिका जैसा या बनना है सोवियत रशिया जैसा. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका ने स्टार्ट किया और ये स्टार्ट कहां से हुआ? इट स्टार्टेड इन यूरोप. यूरोप की कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया सबसे पहले इनटू वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस. अमेरिका ने सबसे पहले स्टार्ट किया. अमेरिका ने यूरोप को दी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एड, मतलब पैसा दिया ताकि वो इकोनॉमी रिवाइव कर पाए एंड दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड एज द मार्शल प्लान. America has given huge amount of money to European countries to revive and this is called the Marshall Plan. अब अमेरिका दे रहा है तो सोवियत यूनियन कैसे पीछे हटेगा? सोवियत यूनियन ने भी पैसा दिया था which was actually known as the Molotov Plan. But ये आपको नहीं पूछते हैं CBSE में, neither it is mentioned in your book. But as a political science student, you have to know this. Now it's important कि military pacts क्यों बनाए गए? अगर आपने पैसा ही देना था तो why you have created the military pacts? Military pacts have been created to extend more influence in a very strong way. So if you can see this whole map, the yellow colored countries, Norway, West Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Britain, Greece, Turkey, all these were considered to be the Western Alliance. And the countries particularly in the red, Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, they were the Eastern alliances. Okay, so these two alliances emerged particularly and clearly because of their geographical location. West alliances and the Eastern alliances. Now these alliance system ये एक साथ आ गए थे तो इन्होंने क्या किया? They have created into, or I should say consolidated into the military pact. इन्होंने military pact में consolidation किया. Now what do you mean by this? Military pact का क्या मतलब होता है? बेटा military pact का मतलब होता है कि हम सब मिलके joint military actions करेंगे. उसके अंदर armed forces इनकी joint military pact में exercises करेंगी, चाहे वो naval हो, air force हो, army हो, ये सब एक साथ करेंगे. ठीक. सो अगर अमेरिका पे अटैक होता है तो अमेरिका के साथ हेल्प करने के लिए कौन कौन आएगा? नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, टर्की, सब की सब फौज इकट्ठा हो जाएंगी एंड दे विल हेल्प अमेरिका. तो ये एक इनका प्रोपेगेंडा था, एक आइडिया था. सो दीज मिलिट्री एक्ट्स आर मेड वेरी वेरी क्विकली. और ये मैप में जो येलो पोर्शन है दैट इज दी वेस्टर्न अलायंसेस और ये आपका ईस्टर्न अलायंसेस क्रिएट ही इसलिए किए गए थे. एंड इफ यू रिमेंबर द वेस्टर्न अलायंसेस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वर्ल्ड, द ईस्टर्न अलायंसेस कंसीडर्ड टू बी द सेकंड वर्ल्ड, and the countries who have not joined both of these alliances considered to be the third world, and India came as a third world country. Okay, so CBSE में ये questions आते हैं, कोई भी term use कर सकते हैं, don't get confused, it is very simple. The first military pact, I would say, came in 1949 as NATO, North Atlantic Treaty Organization. Simple इसका year है 1949 और एक simple motto है to counter सोवियत यूनियंस इन्फ्लुएंस. तो ये कितनी एसोसिएशन है, क्योंकि ये कभी कभी इतना पार्ट आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है जिसमें आप नेटो की फुल फॉर्म लिखेंगे, ईयर लिखेंगे और बताएंगे. सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ बेसिकली 12 स्टेट्स. ठीक है, और इनका सिंपल सा एम है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे.
But what was the Soviet Union doing at that time? Soviet Union also created an alliance system. सोवियत यूनियन के अलायंस सिस्टम को हम बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट, और ये आता है 1955 में, और इसका एक ही फंक्शन है, एक ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या है? टू काउंटर द नेटो फोर्सेस इन यूरोप. यूरोप में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करे, ना बढ़ाए, because you don't want your enemies to be on your doors. That is why Soviet Union created and gave aid, huge amount of aid to these countries, ताकि ये इनके ग्रुप में शामिल हो जाएं. Clear? इतना आपको क्लियर है? Next we will move towards the US के और दो अलायंस सिस्टम थे. एक उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए बनाया था, that is your सीटो, और एक बनाया था सेंटो. ठीक, तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो बेसिकली इन्होंने बनाया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, जहां पर आप लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, बेसिकली और एशियान कंट्रीज जितनी भी हैं उनके लिए बनाया गया था सीटो. और सेंट्रो बेसिकली योर सेंट्रल ट्रीटी, सेंट्रल में जो वर्ल्ड के सेंट्रल में आती हैं योर मिडिल ईस्ट. ठीक, तो ये मिलिट्री पैक्स का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि वो पैसा देंगे और आप क्या करेंगे? आप उनके अलाय बन जाएंगे. Now the question, another question emerges, which is very tricky and which comes in the 2 marks category, that why the smaller states entered into the line system. Smaller states जो अभी आजाद हुए हैं, कॉलोनीज थे पहले, ये क्यों सोवियत यूनियन और यूएस के अंडर इन्फ्लुएंस में आ गए? Now number one thing is they got the promise of the protection. Now what kind of protection? See, ये जो smaller states थे, let's take an example of Pakistan. ठीक है, छोटी सी कंट्री है, अभी अभी आजाद हुए हैं, ना इनके पास आर्मी है, ना ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना इनके पास अच्छे हाईटेक वेपन्स हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, एंड मोस्टली what they want कि हमें अभी बचा लिया जाए. So इसीलिए ये लोग अलायंस सिस्टम में आ गए कि आप हमें बचा लीजिए ताकि हम पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए. And when Pakistan entered, they got the promise of protection. They even got the high-tech weapons, F-19s, F-16s. Pakistan use कर रहा था. If you see the documentaries of 1965, you will see Pakistan is having F-19s, F-16s. ठीक है, they even got the promise of weapons, बहुत अच्छे weapons, हथियार मिले थे. And the third is they have already talked about the economic aid, उनको मिल ही रहा था. ठीक, but एक दिलचस्प चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुपर पावर्स क्यों आए इस अलायंस सिस्टम में. अमेरिका जैसी कंट्री क्यों पाकिस्तान के दर पे गई? पाकिस्तान जैसी कंट्री को, आई एम टेकिंग हियर पाकिस्तान एज एन एग्जांपल माय डियर. So why they entered into the alliance? Now let me tell you very quickly and very cleverly कि ये लोग superpowers were very clever in this area. Superpowers wanted to use the resources. जब कॉलोनी बनाया था तब भी यूज कर रहे थे, अब indirect यूज कर रहे हैं. So they are using the oil and the minerals. Okay, vital usage है. They are getting the territory. Obviously, if you want to spy or even if you want to use the weapons, आपका जमीन खराब होगा तो हमारा जमीन खराब क्यों हो, किसी और का जमीन खराब हो, it's better, right? So इसीलिए इन्होंने ऐसा किया. And लोकेशन, obviously अगर आपको स्पाई करना है किसी पे तो आपको भेजना पड़ेगा किसी को. So ये स्पाई करने के लिए इन्होंने जमीन दी अपनी, और इकोनॉमिक सपोर्ट ऑल टुगेदर. अगर वो मिलिट्री अपनी रखेंगे भी तो भी इनको अपना इकोनॉमिक सपोर्ट देना पड़ेगा. ऑब्वियसली मिलिट्री को थोड़ा बहुत तो आपको भी स्पेंड करवाना पड़ेगा बिकॉज दे आर यूजिंग योर टेरिटरी फॉर दैट, राइट? The last part of the video, I'll quickly go to the arenas of the Cold War. Now, what do you mean by arenas here? Arenas का मतलब है ये वो areas हैं जहां पर लड़ाई हुई नहीं थी but chances थे कि हो सकती है. Like Congo, if you see early 1960s, Korea, जहां करेक्टली डिवीजन हो गया बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया. साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया इज यूएसएसआर सपोर्ट करता है, राइट? सो आपने डिविजन्स क्रिएट कर दिए. बर्लिन, द बर्लिन वॉल इज बीन क्रिएटेड इन दिस एरिया.
Okay, now here the non-aligned countries like the third world I have talked about, India, ये mediate कर रहा था कि ना लड़ाई हो. Okay, Congo crisis के अंदर UN Secretary General has played a very important role in mediating between these countries. And the NAM countries, I would say the NAM countries, कोरिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू सारे एम्बेसडर्स गए हैं NAM countries के बात करने के लिए. And if you see in Delhi, there is a friendship park of Korea and India. Okay, so I hope you have understood the lecture. I just hope that you are safe. Keep studying, keep learning. Bye bye, everyone.